Hello learners, today I am going to analyze the novel Sons and Lovers, which was written by the famous modern English novelist D.H. Lawrence and was published in 1913. It is an autobiographical novel in which Lawrence depicts the Oedipus complex. What is Oedipus complex? Oedipus complex is the love relationship between a mother एंड अ सन. तो इस नॉवल में इन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स को डिपिक्ट किया है जो मेन कैरेक्टर पॉल मॉरल और उसकी मदर गर्ट्रूड मॉरल के बीच के रिलेशन को प्रेजेंट करता है. सेकेंडली, दिस नॉवल इज एन साइको एनालिटिकल नॉवल. How it is a psychoanalytical novel? Because in this novel Lawrence presents the psychology and a thought of the main character Paul Morrell and her mother Gertrude Morrell. तो इसमें Paul Morrell और उसकी मदर Gertrude Morrell की मेंटल एंड साइकोलॉजी को यहाँ पे राइटर ने प्रेजेंट किया है. सो दिस इज साइको एनालिटिकल नॉवल. इडिपस कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, विच मीन्स लव रिलेशन बिटवीन फादर एंड डॉटर. तो इस नॉवल में हम देखेंगे इडिपस कॉम्प्लेक्स. Sons and Lovers is a 1913 novel by English novelist and poet D.H. Lawrence and was originally published by B.W. Hughes Publishers. While the novel initially received a lukewarm critical reception. तो ये जो नॉवल है जब इनिशियली पब्लिश हुई थी तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस नॉवल को क्रिटिसाइज़ किया था एंड इस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे ऑब्सैनिटी के, बिकॉज दिस नॉवल प्रेजेंट्स ओपन सेक्सुअलिटी एंड मदर सन लव रिलेशन. तो इस पर ऑब्सैनिटी के बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे. बट लेटर ऑन दिस नॉवल रिगार्डेड एज द मास्टर पीस ऑफ D.H. Lawrence and the finest achievement of his. The title of the novel, Lawrence rewrote the work 4 times until he was happy with it. जब तक वो उनको सेटिस्फाई नहीं हो गया अपने वर्क से तब तक इन्होंने इसका टाइटल चेंज किया. ऑल्दो बिफोर पब्लिकेशन द वर्क वॉज यूजुअली टाइटल पॉल मॉरल. तो पहले इस टाइटल का नाम था पॉल मॉरल इस नॉवल की मेन कैरेक्टर के नाम पे, बट लेटर ऑन इट वॉज एंटाइटल्ड एज सन्स एंड लवर्स. As the novel is an autobiographical novel, so we have to look upon the biography of the author. David Herbert Lawrence, his full name, D.H. Lawrence का ये full name है David Herbert Lawrence, was born on 11 September 1885 in Eastwood, Nottinghamshire, England, and he was the 4th child among 5 children of his parents. Arthur Lawrence, इनके फादर हैं, who was an uneducated coal miner, and her mother Lydia Beardsall, who belongs to a middle class family. He was a modern English novelist and poet. His collected work represented, among other things, an extended reflection upon the dehumanizing effect of modernity and industrialization. क्योंकि जिस समय के ये राइटर हैं उसी समय वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर के जो भी कंसिक्वेंसेस थे वो इनकी नॉवेल्स में हम देखते हैं, जैसे कि उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स थे, किस तरह से डीह्यूमनाइजिंग इफ़ेक्ट फैल चुका था, और इनके जो मेन इम्पॉर्टेंट थीम्स होते थे इनके वर्क्स के, दैट वर सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ, वाइटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड इंस्टिंक्ट इमोशन जो है इनके नॉवेल्स में हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. He got his early education from Nottingham High School and got his he got his primary education from local board school, and he got his high education from Nottingham High School, and then he joined British School in 1901 as a teacher. तो इन्होंने as a teacher अपॉइंट किया गया इनको in British School, but because of some reason he has to leave that school. वो स्कूल पसंद नहीं आई तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दी, and then he joined Davidson Road School, Croydon in 1908. He was died in March 2nd, 1930 by some serious illness. His literary career was divided into 3 phases. The first phase from 1909 to 1912, second phase
from 1913 to 1920 and third phase from 1920 to 1924. जो इनका फर्स्ट फेज़ था, इसमें इन्होंने सबसे पहले अपनी फर्स्ट पोएम की कलेक्शन पब्लिश की थी, दैट वाज एंटाइटल्ड अ स्टिल आफ्टरनून विच वॉज पब्लिश इन 1909. ये इनकी पोएम की कलेक्शन का टाइटल था, अ स्टिल आफ्टरनून, जो इन्होंने द इंग्लिश रिव्यू में पब्लिश कराई थी. ये मैगज़ीन था द इंग्लिश रिव्यू, इसमें उन्होंने अपनी पोएम का कलेक्शन पब्लिश किया था. इनकी जो डिब्यूट नावल थी, जो फर्स्ट नावल थी, दैट वाज द वाइट पिकॉक विच वॉज पब्लिश इन 1911 एंड हिज सेकेंड नावल वॉज ट्रेसपासर वॉज पब्लिश्ड इन 1912. इनकी ये जो इम्पॉर्टेंट नावल है सन्स एंड लवर्स, जो इनकी मास्टरपीस मानी जाती है, ये सेकेंड फेज़ में पब्लिश हुई थी इन 1913. हिज अदर इम्पॉर्टेंट नावल्स वर विमेन इन लव पब्लिश्ड इन 1920. ये इनकी एक पोएम का कलेक्शन था, लुक वी हैव कम थ्रू, ये पोइट्री का कलेक्शन था. थर्ड फेज़ में भी इन्होंने बहुत सारी नावल्स इम्पॉर्टेंट पब्लिश की थी, लाइक एरन्स रॉट, कंगारू, द प्लम्ड सर्पेंट, सी एंड सार्डिनिया. तो ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. तो अब हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. चूँकि ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है एंड इट इज़ हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नावल, तो जो भी कैरेक्टर नावल में है वो उनके रियल लाइफ कैरेक्टर है. तो हम कंपेयर करेंगे रियल लाइफ कैरेक्टर को नावल के कैरेक्टर्स से. सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ हिज फादर. तो रियल लाइफ में D.H. लॉरेंस के फादर कौन थे? आर्थर लॉरेंस. नावल में इनका नाम क्या है? वॉल्टर मॉरल. तो एक तरफ है लॉरेंस फैमिली जो रियल लाइफ कैरेक्टर है, और एक तरफ है मॉरल फैमिली जो नावल के कैरेक्टर्स हैं. तो आर्थर लॉरेंस जो इनके फादर हैं वो नावल में है वॉल्टर मॉरल. इनकी जो मदर है लीडिया, रियल लाइफ मदर लीडिया लॉरेंस, नावल में वो हैं गर्ट्रूड मॉरल. ब्रदर, ही हैज़ टू ब्रदर्स, विलियम अर्नेस्ट एंड जॉर्ज आर्थर. विलियम अर्नेस्ट नावल में है विलियम, जिसकी वाइफ है लिली, और जॉर्ज आर्थर जो सबसे छोटा बेटा है उसकी वो नावल में है आर्थर. ठीक है, नाम सेम है, देख लो यहाँ पे भी विलियम है रियल लाइफ में और नावल में भी विलियम है. आर्थर रियल लाइफ में है, नावल में भी आर्थर है. आर्थर्स वाइफ इज़ बीएट्रिस. तो विलियम की वाइफ है लिली और आर्थर की वाइफ है बीएट्रिस. सिस्टर, रियल लाइफ में इनकी टू सिस्टर्स थी, एमिली यूना एंड लेटिस एडा, बट नावल में ओनली वन सिस्टर. तो रियल लाइफ में दे वर 5 ब्रदर एंड सिस्टर एंड इन नावल दे आर ओनली 4 ब्रदर एंड सिस्टर. तो रियल लाइफ में उनकी 2 सिस्टर्स थी, जबकि नावल में उनकी एक ही सिस्टर है, और एनी जो है वो कौन से सिस्टर को प्रेजेंट करती है, इट इज़ नॉट क्लियर. हिज लव अफेयर्स, हिज फर्स्ट लव अफेयर वॉज जेसी चैम्बर. जेसी चैम्बर इनकी पहली लवर थी, और जो नावल में है मिरियम लीवर्स. मिरियम लीवर्स जो है नावल में जेसी चैम्बर का रोल प्ले कर रही है. फ्रीडा वीकली जो इनकी सेकेंड लव अफेयर था इनका फ्रीडा के साथ, वो नावल में है क्लारा डॉफ्स के नाम से. फ्रीडा जो थी एक मैरिड वुमेन थी, जिसके साथ लॉरेंस का अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. फ्रीडा के हस्बैंड का नाम था अर्नेस्ट वीकली, और नावल में अर्नेस्ट वीकली का जो रोल प्ले कर रहा है फ्रीडा के हस्बैंड का, दैट इज़ बैक्स्टर डॉफ्स. तो क्लैरा डॉफ्स एंड बैक्स्टर डॉफ्स आर कपल, एंड क्लैरा का जो लव अफेयर होता है वो पॉल मॉरल के साथ होता है. पॉल मॉरल नावल का मेन कैरेक्टर है और ये सारे रिलेशंस उसके साथ हैं. कुछ माइनर कैरेक्टर हैं. आर्थर मॉरल जो उसका ब्रदर है, ये माइनर कैरेक्टर है नावल का. उसकी वाइफ है बीएट्रिस. मिसेस लीवर्स जो है वो मिरियम लीवर की मदर हैं. एडगर लीवर्स मिरियम्स एल्डर ब्रदर, जिसके साथ पॉल जो है उसकी कंपनी इंजॉय करता है. थॉमस जॉर्डन, जिस कंपनी में पॉल मॉरल जो मेन कैरेक्टर है जिस कंपनी में काम करता है, कंपनी का नाम है थॉमस जॉर्डन एंड सन्स. मिस्टर पैपलवर्थ जो पॉल का बॉस है, थॉमस जॉर्डन कंपनी में पॉल का ये बॉस है मिस्टर एप्पलवर्थ. फैनी एंड पॉली, ये फैक्ट्री की 2 गर्ल्स हैं जिनके साथ जिनकी कंपनी जिनसे बात करना पॉल पसंद करता है.
लुइसा लिली डेंसी वेस्टर्न, तो ये जो लुइसा लिली है ये विलियम की वाइफ है, एंड शी इज़ हाईली इन शैलो एंड इंस्पाइट, और विलियम के लिए ये एक करेक्ट मैच नहीं होती है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है। अगाथा लीवर्स, मिरियम्स एल्डर सिस्टर, अगाथा लीवर्स जो है वो मिरियम की एल्डर सिस्टर है, हु कैस्टिसेस मिरियम फॉर बीइंग सो फ्री, तो ये उसको ओपन करती है फॉर बीइंग फ्री टू प्रपोज पॉल। बिएट्रिस जो कि उस पॉल के सबसे छोटे भाई अर्दर की वाइफ है एंड द मदर ऑफ हिज child. Beatrice matches Arthur's impulse and reckless nature. They have sex before they marry. Their child is born 6 months after their wedding. Leonard जो है वो एनी जो कि पॉल की सिस्टर है उसका हस्बैंड है लियोनार्ड. So these are the characters of this novel. So I hope you have understood clearly all these characters. So in our next video we will discuss about the summary of the novel. So before analyzing the summary, you must clearly understand the character. So after that we will discuss about the summary. Thank you.